Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. So today is first class, and I had planned to start with petition since we will be focusing on drafting aspects, not the pleading aspect. So I have opted one of the topic that is PIL. Since most of the students belongs to the first semester, so instead of going through any other petition or any other drafting formats, it is best to go through PIL because for any other petition, you need to become a lawyer first of all to file, to prepare, to present, but not for the PIL. Even as a law student, you can file PIL. So, what you require right now is you must have notebook to note down all those aspects. Once I elaborate the things related to PIL, firstly I will be introducing PIL, and then I will be emphasizing why PIL is relevant. Then, secondly, I will be talking about the content of the PIL. I will be taking one of the matter as a PIL, and that is CAA, Citizenship Amendment Act. Why? Because I had also drafted for CA PIL.
So that's why I had thought to uh, teach the very basic aspect and also tell you how you can prepare on any other matters too. So once I tell you what exactly CAA is and what content you should have in your mind while preparing drafting, and how you can prepare a complete format, and how you can present before the court, everything I will discuss in this class. But let me tell you one thing: to prepare any drafting, you must have content. Suppose if any client visit you and ask you to prepare any draft, so you must have content, you must have matter, you must have broad knowledge about it. Then only you can prepare a draft, right? So the topic which I have chosen is CAA, and for that you must be having at least basic knowledge about that. Leaders, please be present and mark the attendance. Also prepare a separate list those who are attending this class. Okay, sir. Today I will be discussing firstly about the introduction of PIL. Then I will be discussing the topic that is CAA, and there in CAA I will be focusing on the very first content in the PIL is synopsis, then list of dates. These two things I will be discussing today, and tomorrow I will be discussing related to writ petition, that is the original civil or whatever that is civil petition. Means I will be discussing the main petition tomorrow, and before that whatever the contents are added in the PIL I will be discussing on those things. So let me ask you, any of you have knowledge about it? What is PIL? Any of you? Please tell me. Sir, can you please repeat? What is PIL? Sir, may I? Yes. Sir, actually, the PIL stands for Public Interest Litigation. Whenever any of the victim party is not capable or is not aware about their rights, or somehow they do not stand for their rights, then anybody else in the society can work on their behalf and work on their like they can stand in the court to appeal for them. So, Smriti, tell me, if I have no knowledge about my rights, can anybody stand on my behalf? Sir, sir, may I speak in Hindi? Yes, please. सर सर अगर अगर आपका कुछ भी ऐसा राइट हैम्पर हो रहा है या फिर किसी भी तरीके से आप लॉफुली जो चीज़ आपको अवेलेबल होनी चाहिए या फिर किसी भी टाइप की लीगल चीज़ जो आपके साथ में नहीं हो रही है और आप उसके बारे में अवेयर नहीं हो या फिर किसी भी तरीके से आप कोर्ट ऑफ लॉ में अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो पब्लिक और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो मैं आपके बिहाफ पर कोर्ट में जाकर एक केस फाइल कर सकती हूँ या फिर कोर्ट खुद से भी उस चीज़ के लिए स्टैंड ले सकता है। जैसे कि पहले एक बार ये स्टार्ट हुआ था एक बिहार के जेल में, जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट के ही रिगार्डिंग चीज़ें हो रही थी, जो कि वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम्स थे, उस चीज़ को कोर्ट ने सुओ मोटो के थ्रू अपने आप केस फाइल किया और वहाँ पर उसके ऊपर में पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स चली। ओके। तो आप मुझे ये बताएं, अगर सोसाइटी में चार लोग हैं, यस चार सर। लोगों का राइट हो रहा है सोसाइटी के दूसरे लोगों द्वारा,
तो क्या हम्म। सोसाइटी का प्रूफ ही पीआईएल फाइल कर सकता है? ये सोसाइटी में उन चारों के बिहाफ पर कोई भी उस चीज़ के लिए केस फाइल कर सकता है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो तो। अगर वो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए है तो वो केस नहीं फाइल कर सकता है। मीन्स पीआईएल फाइल नहीं कर सकता। अम, अगर वो सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा तो कर सकते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या फिर सोसाइटी, उसमें ऑल ओवर सोसाइटी का इंटरेस्ट किसी तरीके से लैक हो रहा है तो उसमें मैं केस फाइल कर सकती हूँ। ओके। तो whose microphone is on? Please turn off. I'm getting my voice back. So let me tell you what exactly PIL is. PIL is just to protect the interest of public. अब पब्लिक का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो सकता है? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी या कोई सेक्शन, उसके जो राइट्स हैं वो एबोलिश किए जा रहे हों, हैम्पर किए जा रहे हों, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ कुछ इस तरह की घटनाएं कर रही हो जिसमें एक दो नहीं लाखों लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इफेक्टेड, तो उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड लेना पड़ता है। और फिर उसके लिए पीआईएल एक जरिया है। अगर स्टेट की बात करें तो हाई कोर्ट एक जरिया है। हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करके किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरस्टेट है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके किया जा सकता है। सो इट मीन्स there must be public interest. So PIL means public interest litigation. It means litigation filed before the law, before the court. And for what? For the protection of public interest. And there must be large number of public, not one, two, three. Okay, so there, since there are a large number of public, so they can be addressed by filing a public interest litigation in a court of law. As Smriti rightly said, there can be pollution, there can be environmental issues, there can be terrorism issues, there can be road safety issues, and any hazards or any sort of things which are not convenient for the large number of people, then only PIL can be moved. And this PIL is originally borrowed from American jurisprudence. You must have knowledge about it. This PIL is not written anywhere in our constitution, or there is no such law specifically dealing with this specific word PIL. Okay, there is no any statutory provision for this. It is only interpreted by the judges, and it is also done through the judicial activism. So later on, I will be discussing in some other class about the judicial activism. Now here we are focusing on PIL only. So maybe it is clear for you that the PIL is just to protect the interest of large number of people. Okay, there must be aggrieved party, and the most important aspect is PIL is filed in both the court, at the state, that is high court, or before the supreme court. Now coming back to the provision, under which provision we can file PIL. So if we are filing PIL before High Court, then there is a section 226, sorry, Article 226 under Constitution of India. Secondly, if we are filing PIL before Supreme Court,
Then there is Article 32 which talks about various writs. So once you go through the third or fourth semester, maybe constitutional law will be introduced, and there you can find Article 32 which talks about various types of writ, such as habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibicio, certiorari. These kinds of writs are there for the different purposes. Okay, and now let's talk about the content of the PIL. Today, I'm taking CAA as a matter for this drafting. So, any of you have knowledge about CAA, Citizenship Amendment Acts? I'm not talking about the specific uh, the matter which are going presently. My only concern is about the content related to PIL. Since I have been the part of this CAA before the Supreme Court, so I had decided to talk on this matter and prepare a drafting. So all of you must have knowledge about it. We will not be going through the aspect who is right, who is wrong, whether government is right or public is wrong, whether public is right or government is wrong. We only have to go through the content, and if we, in case we get chance to file PIL before Supreme Court, how we can prepare draft. That is only our concern. So let me know. Please tell me any of you have having knowledge about CA. Sir, may I? Yes. Sir, Citizenship Amendment Act is for individuals who have entered India before 31st of December 2014 belonging to Hindu, Sikh, Jain and Buddhist, Parsi and Christian community from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. Right. Yes. Very good. Any other person? Sir, I'm not sure, but maybe PIL CA के अगेंस्ट होता होगा, क्योंकि PIL सेज कि किसी भी कंट्री के आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, बट यू हैव अ राइट टू अपेयर इन द कोर्ट एंड आप केस फाइल कर सकते हो PIL के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये चीज़ नहीं बोलते, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर्टिकुलर रेसिडेंट ऑफ कंट्री को ही अलाउ करता होगा शायद इन चीज़ों के लिए। Okay. Next. Okay, Any? next. Sir, there was a conflict of idea where Muslim people were stating that I have read in one article that why Muslim people are not included in this criteria. Why only Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian community is there? So there was a rage between individuals in the society. Hmm. Any other student? Okay. So let me tell you before that, Supreme Court has released its guidelines in regard to PIL and said that no petition involving individual or personal matter shall be entertained as PIL. Okay. अगर आपका कोई भी पर्सनल मैटर हो या किसी इंडिविजुअल का मैटर हो, तो उसको एज अ पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। पीआईएल जो मेजरली हुआ है और हो सकता है, और इससे रिलेटेड इस तरह के कोई भी मैटर्स हो जिसमें बॉन्डेड लेबर शामिल हो, या चिल्ड्रंस निगलेक्टेड का मैटर हो, मीन्स कि बच्चों को शिक्षा, बच्चों को हेल्थ, ये चीज़ें नहीं मिली या उनको बॉन्डेड लेबर के इसमें रखा जा रहा हो, और लेबर को उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा हो, या फिर जेल में कैदियों के साथ हरासमेंट हो रही हो,
या कस्टोडियल डेथ हो रही हो, या कोर्ट में स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा हो केसेस का, इन सब मैटर में आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। ये है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। ओके। और अगर लार्ज नंबर ऑफ कोई भी एक कम्युनिटी या कोई जेंडर या कोई एक सेक्शन प्रभावित हो रही हो किसी चीज़ से, जैसे विमेन हरासमेंट का मैटर हो, या फिर किसी एक स्टेट में लार्ज नंबर ऑफ मर्डर, किडनैपिंग, रेप, या फिर डाउरी सिस्टम, इस तरह की चीज़ें हो रही हो जिससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इफेक्टेड, then only we can prepare content for the PIL. Now please note down, today we are talking about CA, Citizenship Amendment Act, and under which जब भी कोई सिटीजनशिप या कोई भी पीआईएल के लिए हम ड्राफ्ट रेडी करते हैं, तो सबसे पहले हमें सिनॉप्सिस बनाना होता है। ओरिजिनल पिटीशन बाद में हम ऐड करते हैं। ओरिजिनल पिटीशन में भी हम कंटेंट्स डालते हैं जिसके लिए हमें रिलीफ लेना है कोर्ट से, लेकिन पिटीशन में सबसे पहले सिनॉप्सिस लिखते हैं। सिनॉप्सिस में हमें जो ओरिजिनल पिटीशन है उसका जो निचोड़ होता है वो हमें डालना होता है सिनॉप्सिस में। फिर उसके बाद जब हम कोई भी पिटीशन तैयार करते हैं तो हम डेट वाइज इवेंट्स भी लिखते हैं कि इस डेट पे ये चीज़ें हुई थी, इस डेट पे ये चीज़ें हुई थी, और तब जाके ये इशू यहाँ तक आया है। तो हमें उसका एक सेपरेट लिस्ट बनाना होता है टेबल में। उस लिस्ट में हम डेट वाइज लिखते हैं कि किस डेट पे क्या इवेंट्स अकर हुआ। डे फर्स्ट क्या, आई मीन इस डेट, फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैटर स्टार्ट हुआ 2006 से, और अभी 2000 आई मीन 2024 है, तो आप इसमें डेट वाइज में ईयर वाइज मेजर करेंगे कि 2006 में ये मामला हुआ था, 2010 में फिर ये मामला इस तरह से बढ़ा, अब ये 2024 में यहाँ तक मैटर आ गया है कि अब हमें पीआईएल फाइल करना पड़ा। तो मेजरली दो चीज़ें हैं, सिनॉप्सिस और लिस्ट ऑफ डेट्स। ये दो चीज़ें आपको ऐड करना होता है सबसे पहले, उसके बाद हम ओरिजिनल पिटीशन डालते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर दे रहा हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आखिर है क्या। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये है कि 1950 में अगर हम बात करें शुरू से, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेडी हुआ, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो लोग इंडिया में हैं या आफ्टर आफ्टर डिवीज़न, आफ्टर माइग्रेशन, जो लोग इंडिया में रह गए उनकी शनाख्त कैसे होगी, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि वो इंडियन सिटीज़न हैं, और किन लोगों को इंडियन सिटीज़न माना जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे डिवीज़न हुआ था, कुछ जो हिंदू थे पाकिस्तान के वो इंडिया गए थे, जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन 100% कोई कहीं नहीं गया था। कुछ हिंदू वहाँ भी रहे, कुछ मुस्लिम्स यहाँ भी रहे। तो यहाँ पे बात यही आई कि किनको सिटीजनशिप मिलेगा, किस बेसिस पे मिलेगा, क्या क्राइटेरिया होगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उस टाइम पे ये क्वेश्चन उठे। ओके। उस टाइम पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या रिलीजियस क्राइटेरिया के बेसिस पे सिटीजन मिलेगा, क्या ओनली हिंदूज विल बी कॉल्ड एज ए इंडियन सिटीजन, क्या इसमें पारसी भी शामिल होंगे, क्या बुद्धिस्ट भी शामिल होंगे, क्या जैन भी शामिल होंगे। तो लोगों ने, जो उस टाइम के लीडर्स थे पार्लियामेंट में, जब डिबेट होती थी इन सब इश्यूज पे, तो कई लीडर्स ने सजेस्ट किए कि रिलीजियस क्राइटेरिया पे आप बनाइए क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स वर अगेंस्ट ऑफ इट एंड अपोज्ड इट। उन्होंने ये कहा कि हमारा आर्टिकल 14 है, 15 है, 15 ये कहता है कोई भी रिलीजियस ग्राउंड पे हम कोई लॉ नहीं बना सकते। सिमिलरली अगर सिटीजनशिप की बात करें तो हम रिलीजियस बेसिस पे कोई भी एक्ट, स्टैट्यूटरी एक्ट ऐसा पास नहीं कर सकते।
सबको इक्वल राइट्स दिया गया है, और जो लोग इंडिया में हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी सेक्शंस के हो, उन सबको सिटीजनशिप ग्रांट होगी, वो सब सिटीजन्स कहलाए जाएंगे। यहाँ पे रिलीजियस ग्राउंड नहीं रहेगा। तो उस आइडिया को 1950 में रिजेक्ट कर दिया गया, और रिलीजियस रिलीजियस ग्राउंड पे सिटीजनशिप के लिए, और जनरल ग्राउंड रखा गया कि हर कोई जो इंडिया में है, दे विल बी कंसिडर एज सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर चलो बात करते हैं डेट वाइज। तो आप अब स्टार्ट कीजिए नोट करना। मैं 1950 से ही शुरू करूंगा। लिस्ट ऑफ डेट पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे सिनॉप्सिस पे कि गवर्नमेंट ने क्या किया फिर उसके बाद। तो 1950 में जो मैंने आपको बताया कि रिलीजियस क्राइटेरिया को रिजेक्ट किया गया, और उसके बाद आर्टिकल 5 टू 11 इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो डील करता है सिर्फ सिटीजन्स के क्राइटेरिया से रिलेटेड, कि आपको किस तरह से सिटीजनशिप मिलेगी इन केस अभी कोई बंदा इंडिया में आके रहना चाहता है फॉरेन कंट्री से। सो हाउ कैन ही अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। ये सारी चीज़ें 5 टू 11 में मेंशन की गई क्राइटेरिया। ये है 1950 की बात। फिर हम बात करते हैं कि सेपरेट एक स्टेचुअरी एक्ट पास किया गया 1955 में। उसका नाम रखा गया द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके। अर्लियर इन 1950 article 5 to 11 was inserted for defining the criteria for citizenship, and at that time there were many leaders who were emphasizing to prepare or pass such law which are based on religious criteria, but majority of law leaders rejected this idea and focused on article 15, that no law can be prepared or passed on the basis of religion. Everyone is equal as per article 14. Then in 1955, article Citizenship Act 1955 was enacted. Then come back to the 1987. Yes, let's come to the 1987. 1987 was the main important event. अब इस इवेंट में क्या होता है कि जब ये 1955 को इनेक्ट किया गया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जब इस एक्ट को इनेक्ट किया गया, तो 1987 तक के लिए ये कहा गया कि जो लोग 1987 तक इंडिया में रह रहे हैं या 1987 तक पैदा हुए हैं, मीन्स एनी चाइल्ड इज बॉर्न in India till 1987, or any person existing prior to CAA, means Citizenship Amendment Act से पहले जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, and then those children who were born in India till 1987, उन सबको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। Then the question arises, जो लोग 1987 के बाद जन्म लेंगे इंडिया में, फिर उनके साथ क्या होगा? क्या उन्हें सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? क्या उनको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? सो व्हाट हैपेंस देन, till 1987 India follows the criteria of citizenship by birth. Understood? Those who are born, or whose father was born, whose grandfather was born in India, their children can also be considered as Indian citizen till 1987. So that means India followed the criteria of citizenship by birth till 1987. But this criteria was narrowed by the government, because the issue arises for those who was born
till who has to be born till after 1987 to 2003, because 2003 was also a major drawback, where the government has inserted some new amendments there in the constitution. I mean, they are in the statutory act for the citizenship. तो 1987 के बाद से 2003 के बीच में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनके साथ इशू हो हुआ ये कि क्या वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। ये एक मेजर इशू था 2003 में। क्यों? इसलिए कि गवर्नमेंट ने नया मॉडिफिकेशन कुछ किया सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। व्हाट हैपेंड देन, अ पर्सन कैन आल्सो बी रजिस्टर्ड एज एन इंडियन सिटीजन। ये क्राइटेरिया तो बनाई गई, और क्राइटेरिया ये भी बनाई गई कि अ, जो बच्चे 1987 के बाद पैदा हुए, उनके माता पिता या इनमें से कोई एक किसी इंडियन से शादी कर रखे हो, तभी वो बच्चा इंडियन सिटीजन माना जाएगा। या फिर वो इंडिया में 10-11 साल एक क्राइटेरिया थी, उससे ज़्यादा से रह रहे हों, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी बच्चा थ्रू न्यूट्रलाइजेशन, मींस जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करके वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। ये क्राइटेरिया सब बनाई गई 1987 टू 2003 के लिए, क्योंकि 2004 में सिटीजनशिप एक्ट वाज अमेंडेड। और अमेंडमेंट में क्या किया गया, इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन किया गया कि इलीगल माइग्रेंट कौन है। अब देखो ये डालने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों मॉडिफाई किया गया, इलीगल माइग्रेंट हुए कैसे। जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद जो लोग इंडिया में थे, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इनेक्ट किया गया। 1987 तक का एक क्राइटेरिया बनाया गया कि जो लोग इंडिया में रहेंगे, जो लोग इंडिया में हैं, जिन लोग जो बच्चे जन्म लिए हैं, वो उन लोगों को कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही इंडियन सिटीज़न माने जाएंगे। या जिनके पेरेंट्स इंडिया में हैं, उनके फादर इंडिया के हैं या ग्रैंड फादर हैं, तो उनके भी बच्चे इंडिया के माने जाएंगे। उसके बाद 2003 तक, 1987 टू 2003 तक, जो भी बच्चे इंडिया में जन्म लेंगे तो उनको कंडीशनल सिटीजनशिप मिलेगी। या तो उनके पेरेंट्स, माता पिता में से किसी एक, कोई एक इंडियन हो, या वो इंडिया में कई सालों से रह रहे हो, 6 साल, 10 साल, 11 साल, या फिर वो एक जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर हैं उसको फॉलो करते हुए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन जो लोग इंडिया में आए इलीगली, चाहे कोई भी किसी भी कंट्री के हो, इंडिया में आके रहे, और इफ़ दे आर कंसीडरिंग देयर सेल्फ एज इंडियन सिटीज़न, क्या वो इंडियन सिटीज़न माने जाएंगे। मान के चलो बांग्लादेश से कुछ लोग इंडिया में आ जाते हैं, बंगाल में आ जाते हैं, आके रहते हैं। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? ये सिर्फ बात मुस्लिम्स के लिए नहीं है, किसी भी रिलीजन से हो। मान लो श्रीलंका से आके तमिलनाडु में रहने लगे, अब पता कैसे चलेगा? अब वो इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई किए, थ्रू न्यूट्रलाइजेशन कोई भी अप्लाई कर सकता है जो गवर्नमेंट की एक क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हुए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1987 टू 2003 के इस बीच में। अगर मान लो उसके माता पिता को एक किसी एक से शादी नहीं हुई है, तब वो कैसे करेंगे? मान के चलो वो इलीगली आके इंडिया में रह रहे हैं, और इफ़ दे आर कंसीडरिंग देयर सेल्फ एज द इंडियन सिटीजन, तो इसको कैसे गवर्नमेंट घोषित करेगी कि ये लीगल माइग्रेंट हैं, ये इंडिया के नहीं हैं? तो इसके लिए 2004 में इलीगल माइग्रेंट का एक कंसेप्ट ऐड किया गया। मीन्स समवन हु एंटर्स और स्टे इन इंडिया विदाउट लीगल ऑथराइजेशन, they will be considered as illegal migrant. And also
This amendment was effective to keep out Bangladeshi migrant who would get Indian citizenship and participate in election. तो मोस्टली बांग्लादेशी को आउट करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के लोग जो आके रह रहे थे एज अ लेबर, एज अ मेंबर आके इंडिया में रह रहे थे, काम कर रहे थे, और वो काम कर रहे थे तो फिर वो वहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करते थे, उनके वोटर आईडी कार्ड्स भी बन जाते थे। तो उन लोगों को निकालने के लिए, उन लोगों को कैटेगराइज करने के लिए कि ये लीगल माइग्रेंट हैं, ऐसा प्रोविज़न डाला गया। और ये भी कहा गया, आफ्टर द अमेंडमेंट, एनी चाइल्ड born in 2004 on afterwards, whether whose parent is in India is Indian, or whose parent married to Indian, still they will be considered as illegal migrant, and they would be disqualified from the citizenship by birth. तो ये बात आपको समझ में आ गई। 2004 से, मीन्स आफ्टर 2003, उसके बाद जो अमेंडमेंट आया 2004 में, उसमें ये कहा गया कि जो लोग जो इलीगल माइग्रेंट हैं, इवन इफ they get married to any Indian, they would not be getting citizenship like that. Okay, if the child is born, the child will also be not considered as the citizen of India. तो ये सारे इसमें अमेंडमेंट्स में डाले गए। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं था। अब बात ये थी कि जब बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं, तो बांग्लादेशी तो ठीक है, बांग्लादेश एक नेशन को डिनोट करता है, इससे ये डिफाइन नहीं होता कि किस जाति और किस धर्म के लोगों को ही इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। देन व्हाट हैपेंस इन 2015, गवर्नमेंट ने इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन कर दिया और ये कहा कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स, विच इंक्लूड्स हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, यही लोग लीगल माइग्रेंट होंगे। इसके अलावा जो बचेंगे वो इलीगल माइग्रेंट होंगे। तो इससे ये समझ में आया कि इलीगल माइग्रेंट मीन्स मुस्लिम्स नहीं है इसमें, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है। तो इशू सबसे पहला ये आया कि व्हेन दिस category was defined in 2015, government exempted non-Muslim illegal migrant from three countries through its executive orders, means Ministry of External Affairs, Ministry of होम अफेयर्स ने डायरेक्टिव पास किया और ये कहा कि थ्री कंट्रीज से जो नॉन मुस्लिम्स होंगे वो ही लोग लीगल माइग्रेंट होंगे, इसके अलावा जो होंगे वो इलीगल माइग्रेंट होंगे, मीन्स मुस्लिम्स लोग इलीगल माइग्रेंट होंगे। अब थ्री कंट्रीज में इन्होंने डिफाइन किया कि थ्री कंट्रीज होगी बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड ऑल्सो पाकिस्तान। तो मुस्लिम्स को इस पे ऑब्जेक्शंस ये आया कि हमें क्यों नहीं अलाउ, हम अगर इंडिया में आके रहेंगे तो हमें क्यों एग्जैम्प्ट नहीं किया गया, हम क्यों इलीगल माइग्रेंट हैं, लॉ तो सबके लिए बराबर है। अगर कोई क्रिश्चियन आके इंडिया में रह रहा है तो वो लीगल माइग्रेंट है, और कोई मुस्लिम आके रह रहा है वो इलीगल माइग्रेंट है, तो ये भेदभाव क्यों है। तो गवर्नमेंट का ये जवाब था, चूंकि चूंकि नॉन मुस्लिम्स फॉरेन कंट्री में माइनॉरिटी कम्युनिटी में है, मिसल फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में
ये जितने भी सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं, ये सब माइनॉरिटी कम्युनिटी में, मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं वहाँ। अफ़गानिस्तान में मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान में मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटी में ये लोग हैं। इन लोगों के साथ परसिक्यूशन हो रहा है। परसिक्यूशन मीन्स भेदभाव इस तरह के हो रही है, इनको डिप्राइव किया जा रहा है। चूँकि ये लोग माइनॉरिटी में हैं, इनको सप्रेस किया जा रहा है। इनके साथ दंगे होते हैं, इनको इनके राइट्स नहीं दिए जाते इन कंट्रीज़ में। अगर ये कंट्रीज़ में रह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम इंडिया में भाग के आ जाएँ, तो हम इनको लीगल माइग्रेंट कहेंगे और हम इनको सिटीज़नशिप दे देंगे। लेकिन मुस्लिम्स को नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए 3-3 कंट्री है और वो लोग मेजॉरिटी में हैं, और उन लोगों के साथ अगर कोई दिक्कत होगी, तो वो लोग परसिक्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएँगे। सिर्फ़ माइनॉरिटीज़ लोग परसिक्यूशन के कैटेगरी में आएँगे। अगर वो लोग आते हैं, वो पहली बात इल्लीगल माइग्रेंट होंगे। उन्हें असाइलम लेना होगा लीगल तरीके से। सपोज़ अभी रिसेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इंडिया भाग के आ गई। उन्होंने असाइलम सीक करने की यहाँ तो कोशिश नहीं की। उन्होंने असाइलम ब्रिटेन में कोशिश की लेने की। अगर वो इंडिया में कोशिश करती असाइलम लेने की, तो एक लीगल वे था कि वो यहाँ आके रह सकती थी। लेकिन वो जो आई, वो शॉर्ट नोटिस पे आई, जिसका मतलब ये था कि वो इल्लीगल माइग्रेंट घोषित हो सकती थी। गवर्नमेंट चाहे तो अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे अगर वो लीगल तरीके से अप्लाई करती असाइलम के लिए, तो गवर्नमेंट उसको असाइलम ग्रांट करती। सिटीजनशिप ग्रांट करे ना करे, वो गवर्नमेंट के अपने इस पे है। इसी तरह से जो लोग दूसरी कंट्री से, अब जैसे बर्मा में मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने किया। वो लोग भाग भाग के बॉर्डर क्रॉस करके भागे। अब उनके पास दो ऑप्शन था, या तो इंडिया में एंट्री करते या बांग्लादेश में जाते। तो उन्होंने असाइलम सीख किया, कुछ बांग्लादेश में, कुछ इंडिया में। तो गवर्नमेंट, चूँकि कंट्री का अपना एक ट्रीटी होता है, जिसमें किसी भी कंट्री में अगर किसी के साथ भेदभाव, अत्याचार हो रहा है, तो वो किसी दूसरी कंट्री में जाके पनाह ले सकता है, और ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया जाता है। ये इसलिए नहीं कि कोई मुस्लिम्स है, कोई हिंदू है या सिख है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे असाइलम दिया जाता है। अगर वो असाइलम सीक नहीं करते, तो वो लोग इलीगल माइग्रेंट होते। तो अब यहाँ पे 2015 में तो डिफ़ाइन किया गया कि इलीगल माइग्रेंट कौन होंगे। 2018 में डायरेक्टिव पास किया गया और कहा गया कि सिर्फ जो है नॉन मुस्लिम्स ही लीगल माइग्रेंट होंगे, उन्हें ही सिटीजनशिप दिया जाएगा। और 2019 में ये भी डिफ़ाइन कर दिया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन कंट्रीज़ से आए हुए लोग लीगल माइग्रेंट होंगे, जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी में होंगे, जैसे जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ये लोग। तो इसीलिए मुस्लिम्स को इस पे आपत्ति हुई और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था। और फिर उसके बाद एक पिटीशन तैयार किया गया, सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किए गए। अब तक 236 पिटीशन फाइल किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। और इन सब, चूँकि हर कोई अपना अपना, हर ऑर्गेनाइजेशन ने, चूँकि पब्लिक एट लार्ज का मसला है, इसमें राइट्स प्रोटेक्टेड का मसला है। यहाँ पे ये भी इश्यूज़ आया कि जो लोग वहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं मुस्लिम्स बॉर्डर एरिया में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में लोग रह रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा ये लीगल माइग्रेंट मुस्लिम है या वाकई इंडियन सिटीजन है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम उसके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट 2004 से बनने शुरू हुए, उससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट का प्रोविज़न ही नहीं था। तो वो लोग जिनके दादा, जिनके अंकल या जिनके फादर के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, या जिनके पास लैंड का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो तो ईज़िली डिक्लेयर्ड हो जाएंगे कि ये इलीगल माइग्रेंट है, भले ही वो लोग इंडिया के ही निवासी हों। तो ये सब एक इश्यूज़ था।
गवर्नमेंट ने कई सारे डायरेक्टिव्स निकाले। मैं उन डायरेक्टिव्स पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या लॉज निकाले आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन इलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे और कौन लीगल माइग्रेंट कहलाएंगे। आइडेंटिफिकेशन किस कैसे होगी। कुछ इसमें गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न निकाला कि जो वहाँ के डीएम एसडीएम जो लोकल लेवल के कर्मचारी होंगे वही डिसाइड करेंगे कि कौन लीगल माइग्रेंट है कौन इलीगल माइग्रेंट है। और अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स मंगवाया जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, गलत डॉक्यूमेंट होंगे तो फाइन इम्पोज हो जाएगा। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो फिर उन्हें एक अलग से कारागार होगी, मीन्स प्रिजन सेल होगा, वहाँ उनको डाल दिया जाएगा जब तक कि उनका डॉक्यूमेंट क्लियर ना हो जाए, जब तक कि उनका केस कंप्लीट ना हो जाए, कि वो डिफाइन ना हो जाए कि वो लोग क्या है एग्जैक्टली exactly। तो ये सब, तो इसमें मेजर इश्यूज ये सब आए कि आप किसी भी लोकल अथॉरिटी को जब आप ये डिसाइड करने के लिए देते हैं कि कौन सिटीजन है इंडिया का और कौन नहीं है, और ये भी डिसाइड करने के लिए देते हैं कि आप किसी के डॉक्यूमेंट्स अगर गलत हैं रॉन्ग है तो आप फाइन इम्पोज कर देंगे, तो आप उनको क्वाशी जुडिशल राइट्स दे रहे हैं। क्वासी जुडिशियल राइट्स इट मीन्स कि आप उनको ये तय करने दे रहे हैं, मीन्स आप उनको जज बना रहे हैं लोकल कर्मचारी को, जबकि ये डिसाइड करने का मैटर मामला जो है वो कोर्ट का है, किसी गवर्नमेंट बॉडी का नहीं है। ये जुडिशियल एक्टिविटी है, कोर्ट में तय होगा कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है। यहाँ पे अगर कर्मचारी डिसाइड करने लगा तो सबसे ज़्यादा करप्शन इसी में आएगा। जिसको ज़्यादा पैसे मिल गए वो डिसाइड कर देगा कि ये सिटीजन है ये नहीं है। तो जहाँ करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है फिर वहाँ पे कोई प्योरिटी नहीं आती है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो इस तरह से बहुत सारी इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स थे, इन्हीं सब चीज़ों को बेस बना के सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की गई है। तो आई होप कि आपको ये डेट वाइज चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपने नोट नहीं किया है तो मैं एक बार और लिस्ट ऑफ डेट्स रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले we are talking about 1950 where the constitution was adopted and criteria for citizenship was added and section 5 to 11 was inserted. At that time there was a debate on stages and parliament, and at that time most of the leaders emphasized on to go through a neutral process and adopt a general neutral process for granting citizenship. A few of them were there who were opposing it and expressing the criteria should be religious based, but that idea was rejected in 1950. Next, in 1955, Citizenship Act 1955 was enacted. In 1987, uh, since the power was there under these statutory provision, means the Citizenship Act 1955 was enacted in 1955. Then in 1987, it is said that the under existing law, any existing member of India prior to Citizenship Amendment Act, any person who was born in India till 1987 is an Indian citizen without any further ado. Hence, till 1987, India followed the criteria of citizenship by birth. Okay, till 1987. But criteria for after 1987 to 2003 was narrowed down. Why? Because nobody can be considered as Indian citizen if even if the child is born in India after 1987. The only provision was a person can also be registered as an Indian citizen by qualifying the criteria on the ground that if any person is or belongs to India by its origin or residing in India, or any person whose father is an Indian or mother is an Indian. So these were the criteria. But
by birth they will not be considered as citizen till 2004, because government had to define who is illegal migrant and who is migrant. Now in 2004, Citizenship Amendment Act was amended by introducing illegal migrant word, and defined that someone who enters or stay in India without legal authorization will be known as illegal migrant. And mostly this illegal migrant word was defined to keep Bangladeshi migrant away who were there in northeast and used to participate in elections and considered themselves as an Indian citizen. So after the amendment, any child was born in 2000 or afterward, even one parent who is an illegal migrant would be disqualified from citizenship by birth. It means any Bangladeshi come to India and marry any lady, still the child would be considered as illegal migrant, or the person would be considered as illegal migrant. In 2015, government had defined who are actually legal migrant and from which country they will be considered if they are coming to India, and from these countries will be considered as illegal migrant and who are exempted. So the government passed an executive order providing exemption to the illegal migrant. For that, exemptions were granted to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian minority community. From these countries Bangladesh, Afghanistan, Pakistan. In 2020, I mean 2018, Ministry of Home, means Home Ministry, issued a directive again and provided a separate provision for the process of making legal to the non-Muslims from these three countries that how they can get citizenship, and these were based on the religious ground. Means, as article 15 talks about, no law can be passed on the basis of religion, then the government itself defined these three religious person for the citizenship, and excluded one religious person, that is Muslim. So that's how Citizenship Amendment Act was passed in 2019, containing all these facts which I have elaborated right now. So Citizenship Act 2019 was passed by both house and notified by the president, and which removes the disqualification based on illegal migrant for minority communities, specifically Hindus, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. It means these groups would not be considered illegal migrants, and thus allowing them to apply for citizenship, and also for them shorted the period of residence in India. Instead of 11 years, they are capable of applying for citizenship only in 5 years. If any migrant come to India and they reside at least for 5 years, they would be considered as citizen of India, but not for the others. They should at least reside in India at least for 11 years, then only they can apply for citizenship. So I hope you have understood all this fact. And then in 2000 till 2019 to 2024, multiple petition was filed. It is 226 petitions before Supreme Court, and all these petitions are leaded by is being leaded by Kapil Sibbal itself. तो आपने नोट कर लिया ये सारी चीज़ें. Yes, sir. अब हमें क्या करना है, आपका कल का टास्क ये है, आप इन सारे डेट वाइज जितने भी इवेंट्स हैं इसको आप सर्च करेंगे और पढ़ेंगे.
पढ़ने के बाद हम फॉर्म करेंगे सिनॉप्सिस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, your voice is not audible. यस रोशनी। Could you please repeat it your अ, sentence? नहीं समझ आया, प्लीज़ बोलिए। प्लीज़ रिपीट या आप टाइप कर दीजिए। तो अब आपको पढ़ना है ये सारे जो डेट वाइज मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दिए हैं, किस डेट में क्या इवेंट्स अकर हुआ था। फिर हम सिटीजन्स दैट इज़ हम सिनॉप्सिस तैयार करेंगे, और जो चीज़ें आज आपने नोट किया है उसको भी एक रेडी करना है कॉलम टेबल वाइज। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल बनाते हैं, वन साइड आप डेट्स एंड अनदर साइड आप इवेंट्स लिखेंगे। डेट में डेट से ऊपर टाइटल डालेंगे लिस्ट ऑफ डेट्स, और फिर उसके बाद डेट वाइज आप इवेंट्स जो भी अकर्ड हुए, लाइक इन 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडेप्टेड articles about citizenship which was article 5 to article 11। तो इस तरह से आप सारे जिस जिस डेट्स में जो भी इवेंट्स अकर्ड हुए हैं वो सब आप इसमें नोट करेंगे लिस्ट ऑफ इवेंट्स में। उससे पहले सिनॉप्सिस तैयार किया जाएगा। सिनॉप्सिस तैयार करने से पहले अब आपके पास एक बेसिक आइडिया है। अब इस पे आप लोग सभी लोग कल पढ़ेंगे, पढ़ के कल की क्लास में हम सिनॉप्सिस रेडी करेंगे। सिनॉप्सिस और लिस्ट ऑफ इवेंट्स, ये दो चीज़ें जब आप लोगों की रेडी हो जाएंगे तो सबको अपना अपना पिटीशन हमें भेजना है थ्रू ईमेल। आप लोग भेजेंगे, सबके पिटीशंस चेक किए जाएंगे। मैं आपको एक फॉर्मेट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उस फॉर्मेट के बिहाफ पे आपको बनाने हैं। कल हम सिनॉप्सिस बनाएंगे, उसका भी मैं फॉर्मेट कल ही आपको बता दूंगा। लिस्ट ऑफ इवेंट्स का मैंने अभी आपको बता दिया है, बट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इज़ इट क्लियर? Yes, हम sir. लोग आज मौजूद हैं, कल सभी लोग पिटीशन तैयार करेंगे। पहले आप लिस्ट ऑफ डेट्स बना लीजिए, उसके बाद सिनॉप्सिस के बाद हम द नेक्स्ट डे you'll have to provide us petitions जिसमें सिनॉप्सिस और लिस्ट ऑफ डेट्स होंगे। Okay. Everyone is required to submit that, okay? Okay, sir. किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? No, sir. ओके, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। लीडर्स सबके अटेंडेंस प्लीज़ प्रोवाइड कराएंगे इन द ग्रुप एंड ऑल्सो मार्क ऑन द पोर्टल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. यस श्रुति। Sir, actually, I wanted to ask something. Sir, on our assignment, below daily assignment, we have articles topic. So the topics are like different, which you have given us. So like we have to edit, we are supposed to edit the topic name and then write the topic which you have provided on company law, or we are also supposed to write on those topics also, besides you have provided on company. Uh, are you talking about those topics which are available on the portal under topics for article? Yes, sir. Article topics like Those are exempted. That's education why no, policy. no, those are exempted. That's why separate topics were granted in PDF file. We are only accepting topics which were granted on companies law. That's all. And sir, what about interview of two advocates? That is also That accepted, is right? also exempted. All of you are only asked to provide us the daily assignments as well as those topics which are listed under PDF or a Excel sheet on the portal containing 5 topics on companies law. That's all. And also attend this online example class. Okay, sir.